तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनामपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचार्य वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वरूप गौरदेव पुष्पवंतो चित्र संजोतमल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति हरि। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। The Grandarshan Bhagavatam, 10th Canto, Chapter number 1, and text number 4. Nivrittatarshe upagiyamana Bhavashada Shotra Manobhirama Uttama Shloka Gudanuvana Oma Virajita Vina Pashugana Nivrittatarshe upagiyamana Bhavashada Shotra Manobhirama गौतम श्लोक गुणानुवादा विरजेत बिना पशुगना निवृत्ततर्षेणुपगीयमाना भवशरश्रोत्र मनोभिरामा गौतम श्लोक गुणानुवादा विरजेत बिना पशुगना। बोलिए दो तीन लोग।
धन्यवाद। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अंग्रेजी में, तो मैं थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ूंगा। निवृत्त, released from tarshay, lust or mental activities, upagiyamanat, which is described or sung, bhavaushadhat, which is the right medicine for the material disease, shrotra, the process of oral reception, mana, the subject matter of thought of the mind, thought for the mind, abhiramas, from the pleasing vibrations from such glorification, kaha, who, uttam shloka, of the Supreme Personality of Godhead, Gunanuvadat, from describing such activities, Puman, a person, Virajeta, can keep himself aloof, Vina, except, Pashugana, either a butcher or one who is killing his own personal existence. Translation. Glorification of the Supreme Personality of Godhead is performed in the Parampara system. That is, it is conveyed from spiritual master to disciple. Such glorification is relished by those no longer interested in the false, temporary glorification of this cosmic manifestation. Descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul, undergoing repeated birth and death. Therefore, who will cease hearing such glorifications of the Lord, except a butcher or one who is killing his own self? In India, it is the practice among the general populace to hear about Krishna, either from Bhagavad Gita or from Srimad Bhagavatam, in order to gain relief from the disease of repeated birth and death. Although India is now fallen, and when there is a message that someone will speak about Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, thousands of people will still gather to hear. This verse indicates, however, that such recitation of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam must be done by persons completely freed from material desires. Nivritta Darshan. Everyone within this material world, beginning from Brahma down to the insignificant ant, is full of material desires for sense enjoyment, and everyone is busy in sense gratification. But when thus engaged, one cannot fully understand the value of Krishna Katha, either in the form of Bhagavad Gita or in Srimad Bhagavatam. If we hear the glories of the Supreme Personality of Godhead from liberated persons, this hearing will certainly free us from the bondage of mental activities. But hearing Srimad Bhagavatam spoken by a professional reciter cannot actually help us achieve liberation. Krishna Katha is very simple. In Bhagavad Gita, it is said that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. As he himself explains, Matta Parataram Nanyar Kinchit Asti Dhananjaya. O Arjun, there is no truth superior to me. Simply by understanding this fact that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, one can become a liberated person. But especially in this age, because people are interested in hearing Bhagavad Gita from unscrupulous persons who depart from the simple presentation of Bhagavad Gita and distort it for their personal satisfaction, they fail to derive the real benefit. There are big scholars, politicians, philosophers, and scientists who speak on Bhagavad Gita in their own polluted way, and people in general hear from them, being uninterested in hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead from a devotee. A devotee is one who has no other motive for reciting Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam than to serve the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore advised us to hear the glories of the Lord from a realized person. Bhagavata Padodiya, Bhagavata Sthane. Unless one is personally a realized soul in the science of Krishna consciousness, a neophyte should not approach him to hear about the Lord, for this is strictly forbidden by Sanatana Goswami, who quotes from the Padma Puran. Avaishnava girnam putam harikathamritam shravanam naiva kartavyam sarpojishtam yathapaya. One should avoid hearing from a person not situated in Vaishnava behavior. A Vaishnava is Nivritta Trishna, that is, he has no material purpose, for his only purpose is to preach Krishna consciousness. So-called scholars, philosophers, and politicians exploit the importance of Bhagavad Gita by distorting its meaning for their own purposes. Therefore, this verse warns that Krishna Katha should be recited by a person who is Nivritta Trishna,
Shukdev Goswami epitomizes the proper reciter for Srimad Bhagavatam, and Parikshit Maharaj, who purposefully left his kingdom and family prior to meeting that, epitomizes the person fit to hear it. A qualified reciter of Srimad Bhagavatam gives the right medicine, Bhavaushadhi, for the conditioned souls. The Krishna consciousness movement is therefore trying to train qualified preachers to recite Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita throughout the entire world, so that people in general in all parts of the world may take advantage of the movement and thus be relieved of the threefold miseries of material existence. The instructions of Bhagavad Gita and the descriptions of the Srimad Bhagavatam are so pleasing that almost anyone suffering from the threefold miseries of material existence will desire to hear the glories of the Lord from these books and thus benefit on the path of liberation. Two classes of men, however, will never be interested in hearing the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Those who are determined to commit suicide and those determined to kill cows and other animals for the satisfaction of their own tongues. Although such persons may make a show of hearing Srimad Bhagavatam at a Bhagavad Saptaha, this is but another creation of the karmis, who cannot derive any benefit from such a performance. The word Pashuganath is important in this connection. Pashugana means butcher. Persons fond of performing ritualistic ceremonies for elevation to the higher planetary system must offer sacrifices by killing animals. Lord Buddhadev therefore rejected the authority of the Vedas because his mission was to stop animal sacrifices, which are recommended in the Vedic ritualistic ceremonies. Nandasya yagya vider ahashoti jatam sadaya hirdaya darshita pashughatam keshavadrita buddha sharira jai jagadish hare. Even though the animal sacrifices are sanctioned in the Vedic ceremonies, men who kill animals for such ceremonies are considered butchers. Butchers cannot be interested in Krishna consciousness, for they are already mentally allured. Their only interest lies in developing comforts for the temporary body. Bhogeshwarya prasaktanam taya pritachetasam vyavasayatmika buddhi samadhana vidiyate. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotion service to the Supreme Lord does not take place. Sri Narottam Das Thakur says, Manushya janam apaya Radha Krishna na bhajiya janiya shuniya vishwakaino. Anyone who is not Krishna conscious and who therefore does not engage in the service of the Lord is also Pashugana, or he is willingly drinking poison. Such a person cannot be interested in Krishna Katha because he still has a desire for material sense gratification. He is not Nivritta Trishna. As it is said, Travargikaste Purusha Vimukha Hari Medasa. Those interested in three varga, that is Dharma, Artha and Kama, are religious for the sake of achieving a material position with which to gain better facilities for sense gratification. Such persons are killing themselves by willingly keeping themselves in the cycle of birth and death. They cannot be interested in Krishna consciousness. For Krishna Katha topics about Krishna consciousness, there must be a speaker and a hearer, both of whom can be interested in Krishna consciousness. If they are no longer interested in material topics, one can actually see how this attitude automatically develops in persons who are Krishna conscious. Although the devotees of Krishna consciousness movement are quite young men, they no longer read materialistic newspapers, magazines, and so on, for they are no longer interested in such topics. Nivritta Trishna, Tarsha. They completely gave up the worldly understanding of life. For topics concerning Uttam Shlok, the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master speaks and the disciples hears with attention. Unless both of them are free from material desires, they cannot be interested in topics of Krishna consciousness. The spiritual master and disciple do not need to understand anything more than Krishna, because simply by understanding Krishna and talking about Krishna, one becomes a perfectly learned man. Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. The Lord sits within everyone's heart, and by the grace of the Lord, the devotee receives instructions directly from the Lord Himself, who says in the Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham hridi sannavishto mata smritirgyanam apohanam cha vedesya sarvir ahame bhavedyo vedanta krit ved videva chaham.
I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Krishna consciousness is so exalted that one who is perfectly situated in Krishna consciousness under the direction of the spiritual master is fully satisfied by reading Krishna Katha, as found in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and similar Vedic literatures. Since merely talking about Krishna is so pleasing, we can simply imagine how pleasing it is to render service to Krishna. When discourses on Krishna Katha takes place between a liberated spiritual master and his disciple, others also sometimes take advantage of hearing these topics and also benefit. These topics are the medicine to stop the repetition of birth and death. The cycle of repeated birth and death by which one takes on different bodies again and again is called Bhava or Bhavrog. If anyone willingly or unwillingly hears Krishna Katha, his Bhavrog, the disease of birth and death, will certainly stop. Therefore, Krishna Katha is called Bhavaushad, the remedy to stop the repetition of birth and death. Karmi is a person attached to material sense enjoyment, generally cannot give up their material desires. But Krishna Katha is such a potent medicine that if one is induced to hear Krishna Kirtan, he will certainly be freed from the disease. A practical example is Dhruv Maharaj, who at the end of his tapasya was fully satisfied. The Lord wanted to give Dhruva a benediction, Dhruva refused it. Swami Kritarthosmi Varannayache. My dear Lord, he said, I am fully satisfied. I do not ask for any benediction for material sense gratification. We actually see that even young boys and girls in the Krishna conscious movement have given up their long practice of bad habits like illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Because Krishna consciousness is so potent that it gives them full satisfaction. They are no longer interested in material sense gratification. Sense gratification. Hare Krishna. So very interesting and a very long purport by Srila Prabhupada and very important verse also. इस वर्ष के पीछे का इतिहास ये है कि वर्ष सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 9th कैंटो में परीक्षित महाराज, आपको 10 कैंटोस के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, और उसमें दूसरे कैंटो में ये बात बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुति मनवंतरा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय. तो दीज आर द 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता, भागवतम सॉरी, श्रीमद् भागवतम की ये 10 सब्जेक्ट मैटर हैं. कोई भी बुक होती है तो कोई पूछेगा कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या लिखा गया उस बुक के अंदर. जैसे कि भगवद गीता की बात करें तो भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, राइट. Who will tell the 5 subject matters? So to raise your hand, then we will hear. How many of you know the 5 subject matters of the Bhagavad Gita? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पता है तो ऐसे में समझ नहीं आती है क्या हो रहा है, पता है नहीं पता है क्या है. तो कितनों को पता है यहाँ पे गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर? अच्छा, बस इतने लोगों को पता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बहुत बड़े. कितने लोग बैठे हैं क्लास में? 60-70 लोग तो होंगे, 70-80 लोग. उसमें से 10 ही लोग को पता है. और हर हफ्ते क्लास कर रहे हैं लोग आके यहाँ पे. हर हफ्ते कौन कौन आता है क्लास में? अरे खुल के बोलो भाई, आते हैं नहीं आते हैं? अटेंडेंस भी देख रहा मैं ना, पता नहीं मेरे को. अच्छा, कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पे? वाह, बहुत अच्छा. इतने अच्छे अच्छे डिवोटी हैं आपको, किसी को 5 सब्जेक्ट मैटर नहीं पता है. तो क्या पढ़ रहे हैं फिर आप लोग यहाँ पे आके? नहीं, बुरा मानिए बना मत मानिएगा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं. यू डोंट नो 5 सब्जेक्ट मैटर्स. फिर से हाथ रेस करिए, कितनों को पता है 5 सब्जेक्ट मैटर गीता के क्या है? बहुत ही बुरा हाल, वर्स्ट, पूरा हाईवे का बुरा हाल है. किसी को पता ही नहीं 5 सब्जेक्ट मैटर्स गीता का. यस बोलो ब्रो. आप आशुतोष क्या, अरे तुषार. हाँ हाँ, गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म. वेरी गुड, वेरी नाइस. यू कैन क्लैप फॉर हिम तुषार. बहुत अच्छा, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज है. मे भी हो सकता है कईयों को पता हो, अभी याद ना आ रहा हो. तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर हैं, याद होने चाहिए. ईश्वर क्या है, ईश्वर की डेफिनेशन क्या है, काल क्या है, समय के बारे में,
कर्म, उसके बाद प्रकृति, और फिर आपका जीव, दैट इज द फिफ्थ सब्जेक्ट मैटर। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर पता होने चाहिए। और 10 सब्जेक्ट मैटर्स भागवतम के अंदर है, 10 सब्जेक्ट मैटर्स। तो उसमें क्या है, क्रिएशन है, सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, इसका पूरा साइंस आपको भागवतम में मिलता है। ये और किसी बुक में इतना सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, बाकी जगहों पे टिट्स एंड बिट्स है, बट भागवतम इज लाइक वेरी वेरी सिस्टमेटिक, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। तो कैसे अत्र सर्ग, फिर विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन, ये जो उसके बाद की क्रिएशन है सेकेंडरी, वो कैसे होती है, लाइक ब्रह्मास क्रिएशन, एंड सर्ग इज लाइक द लॉर्ड विष्णुस क्रिएशन। देन इट से स्थानम, तो उसके बाद जब क्रिएशन हो जाती है तो स्थान कहाँ कहाँ मिलता है, किसको कैसे डाला जाता है ना, अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, हाउ द अलॉटमेंट इज डन। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम, देन इज द पोषणम, फिर भगवान कैसे अपने भक्तों का पोषण करते हैं संसार के अंदर। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंद्र से लेकर के वृत्रासुर तक, मतलब बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है भगवान का। कहीं भी थोड़ा सा भी डिवोशन देखा है ना भगवान ने, उस चीज को भगवान ने पोषण करने का भरपूर प्रयास किया है। भले ही वो एक शुद्ध भक्त हो जो कि एक असुर के शरीर में आया हो, जैसे वृत्रासुर थे, राजा चित्रकेतु थे पिछले जन्म में, और भले वो इंद्र हो जो कि एक मिक्स डिवोटी है, मटलिस्टिक डिवोटी बेसिकली, जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं भी हैं लेकिन वो भगवान की भक्ति भी करना चाहता है। तो ये दोनों पहलू उसके अंदर है। तो वैसे भक्तों का भी कैसे पोषण करते हैं। इंद्र को कितनी बार भगवान ने बचाया है, आप सरप्राइज हो जाओगे 6th कैंटो जब पढ़ोगे तो। दो ही इज मेटलिस्टिक पर्सन बट स्टिल कृष्णा प्रोटेक्ट्स, कृष्णा का ये नेचर है। तो स्थानम पोषणम उति, उति इज द प्रोपेंसिटीज, एक जीव के अंदर कैसी प्रोपेंसिटीज होती हैं। तो देयर आर 3 प्रोपेंसिटीज बेसिकली, वन इज प्योरली डिवाइन, अनदर इज प्योरली डेमोनिक, एंड द थर्ड वन इज मिक्स। तो मिक्स ह्यूमंस में मिलती हैं, ना प्योरली डिवाइन होते हैं ना प्योरली डेमोनिक हैं। लेकिन जो पूरी तरह से डिवाइन मिलते हैं वो हमें मिलते हैं परीक्षित, प्रहलाद बेसिकली। तो प्रहलाद की केस स्टडी आती है शुरू में 7th कैंटो में, और इसके बाद 7th कैंटो में एक केस स्टडी और हिरण्यकशिपु की, तो पूरी तरह से डेमोनिक। एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड वन, द मिक्स्ड वन इज बेसिकली द ह्यूमंस, और इसमें वर्णाश्रम के ऊपर बताते हैं 7th कैंटो में। देन इसके बाद आती है उति, उति के बाद आता है मनवंतर, मनवंतर अनुकथा। तो अलग अलग मनवंतर में भगवान के कौन कौन से अवतार आते हैं, तो 8th कैंटो में आते हैं मनवंतर कथा। तो मनवंतर इज लाइक 14 मनवंतर आते हैं उनके, और हर मनवंतर भगवान के विशेष अवतार हैं, और उन भगवान की उस अवतारों की जो विशेष लीला है वो 8th कैंटो में। जैसे चौथे मनवंतर में भगवान आए हरि के रूप में, तो उन्होंने गजेंद्र को बचाया, तो वहाँ पे गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है। उसी प्रकार से छठे मनवंतर में आए थे आपके भगवान अजीत के रूप में, जिन्होंने मदद की थी समुद्र मंथन लीला के अंदर। और फिर इस मनवंतर में 7वें में आए थे भगवान वामन देव, है ना। वामन देव के मिक्स रोल्स भी हैं, कहीं पे लीला अवतार भी बताया गया है और मनवंतर में भी। तो वो आए थे बेसिकली बलि को, बलि की डिवोशन को एक्सप्रेस करने। ऐसा नहीं इंद्र को राज्य दिलाने, वो तो सेकेंडरी पर्पस था। वो ये दिखाने आए थे कि बलि कितना बड़ा भक्त है भगवान का, कितना सरेंडर डिवोटी है, 2 असुर के शरीर में क्यों ना आए। सो दैट वाज वन थिंग मनवंतर। और फिर इसके बाद चाक्षुष मनवंतर, उसमें आए मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आए। तो ऐसे ही मनवंतर। फिर ईशानु कथा, ईशानु कथा क्या है कि ईश जो भगवान है उनकी अपने भक्तों के साथ बहुत सारे पास हैं, छोटे 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 छोटे। तो उसमें चंद्रवंश और सूर्यवंश, इसके अंदर बहुत सारे राजाओं के साथ भगवान का आदान प्रदान है। तो वो आता है 9th कैंटो, ईशानु कथा। फिर आते हैं निरोध मुक्ति राष्ट्रीय, तो इसमें निरोध खास करके 12वें कैंटो को बताते हैं, और मुक्ति इज लिबरेशन अबाउट 11th कैंटो, एंड आश्रय तत्व जो है 10th कैंटो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ये जानकारी और ज्ञान होना बहुत जरूरी है हम सबको, है कि नहीं। तो शास्त्रों को बहुत डिटेल्स में हमें जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 10th कैंटो का वर्ष था, जो 10th कैंटो का चैप्टर 1 है, तो 9th कैंटो जब खत्म हो गई, तो 9 कैंटोस खत्म होने के बाद जब सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन किया भगवान ने, तो चंद्रवंश के वर्णन में भगवान ने सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था भगवान कृष्ण का। तो बहुत ही सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन किया, बहुत ही रिकैप में, बहुत ही शॉर्ट में उनके पास टाइम्स बताया। लेकिन जो परीक्षित थे ना, परीक्षित भगवान के बारे में शॉर्ट में नहीं सुनना चाहते थे, वो चाहते थे थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि शॉर्ट में बताएंगे तो फिर वो उतना रस नहीं आएगा। तो डेप्थ क्या है उसकी, व्हाट द डिटेल ऑफ कृष्णास पास टाइम्स, क्योंकि जब डिटेल में जाते हैं ना
तो डिटेल में जाके और उसमें रस निकलता है। इसलिए कहते हैं कि डिटेल्स ऑफ एनी सर्विस इज द साइन ऑफ डिवोशन। कोई भी सेवा हम करते हैं अगर उसकी डिटेल्स हमें पता हो ना अच्छे से कैसे करनी है, ऐसा नहीं कि काम चलाओ तरीके से कर दिया। कोई भी सेवा को अगर अच्छे से करते हैं, गहराई से करते हैं, तो क्या होता है, हमारा डिवोशन एक्सप्रेस होता है उससे, है ना, डिवोशन एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे हियरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एम्फोसिस किया है परीक्षित महाराज ने स्वयं, और प्रभुपाद ने भी अपनी परपट, बहुत लंबा परपट है इसका, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको फिर से घर जाके पढ़िएगा तो बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसमें से पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो क्या कह रहे हैं वर्ष में, कह रहे हैं निवृत्त दर्शर उपगीयमानात् भव सदशोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुगणात्। तो भगवान की कथा, उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान का गुणगान कभी भी एक उन शब्दों में नहीं किया जाता है जो कि बड़े ही लो स्टैंडर्ड्स के होते हैं। तो उनके लिए बड़े चुन चुन के शब्द निकाले जाते हैं भगवान के लिए कि भगवान का गुणगान किससे किया जाए। शब्द तो भौतिक ही हैं, शब्द तो भौतिक ही होते हैं, लेकिन वो शब्दों के माध्यम से भगवान के उन्नत उन्नत गुणों का वर्णन किया जा सके तो उसको उत्तम श्लोक बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे भगवान का गुणगान, अब जैसे मान लो किसी का गुणगान कर रहे हो आप, है ना, मान लो गुणगान कर रहे हो और मैं किसी की सुंदरता का गुणगान कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और अंत में मैं कह दूं कि ये इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, क्या बताएं कि भैंस भी इनके आगे कुछ नहीं है। तो ये कैसा लगा आपको तुलना, बहुत विचित्र तुलना है कि नहीं है। ये इतने सुंदर हैं, इनकी सुंदरता का क्या बखान करूं मैं। शी इज सो ब्यूटीफुल एंड हाउ इज ब्यूटीफुल कि भैंस भी कुछ नहीं इनके आगे। बोलो भाई ये तो मतलब मजाक कर रहे हो आप कि आप गुणगान कर रहे हो। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंपैरिजन ना, रॉन्ग ग्लोरिफिकेशन। तो इसी प्रकार से भगवान का भी जो गुणगान होता है वैसे नहीं होता है। भगवान का गुणगान भी चॉइसेस पोइट्रीज, थोड़ा चुन चुन के कभी निकालते हैं ऐसे शब्दों को और उससे गुणगान करते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम वो ऐसा ग्रंथ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो इतने चॉइसेस वर्ड्स हैं कृष्णा के, उसमें कृष्णा ग्लोरिफिकेशन में, जो आपको बहुत मेस्मराइज करेंगे। जैसे महारानी कुंती कहती है ना, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमस्ते पंकज आंग्रय। तो भगवान बताते हैं इसमें 4 चीजें बताती है महारानी कुंती। शी सेज नमः पंकज नाभाय, कि भगवान की जो नाभि है वो कैसी है, एक कमल के दल के समान है। नो, किसी ने भगवान को देखा नहीं है मान लो, तो कोई पूछेगा भगवान कैसे हैं, तो यहाँ इस ग्लोरिफिकेशन समझ में आ जाएगा, नमः पंकज नाभाय। हाँ, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। तो भगवान ने भी क्या है, गार्लैंड बहुत सुंदर सी लोटस की डाल रखी है। हाँ, नमस्त पंकज नेत्राय, तो भगवान के जो नेत्र भी कैसे हैं, इज लाइक लोटस पेटल्स। और नमस्ते पंकजांग्रय, तो भगवान के चरण कमल, भगवान के जो चरण है वो भी कमल के समान है। हो सकता है हमने कमल नहीं देखा होगा कभी, बट अभी हम लोग पीछे कुछ दिन पहले भी गए थे देहरादून के भक्तों के साथ एक कैंप में, एक चक्र गए थे। तो एक चक्र में हमने देखा कि भगवान का जितना भी डेकोरेशन गार्लैंड्स के द्वारा होता है ना, उसमें सब के सब गार्लैंड्स में मैक्सिमम लोटस होते हैं, और लोटस इतने सुंदर वाकई होते हैं। तो मैंने पर्सनली तभी रियलाइज किया कि लोटस आर सो ब्यूटीफुल। तो लोटस यहाँ नहीं दिखते, वैसे लोटस वैसे यहाँ पे बहुत रेयर है, वो भी बहुत महंगे मिलेंगे आपको यहाँ पे, बट वहाँ पीछे मंदिर के एक पॉन्ड था और पॉन्ड में बहुत सारे लोटस होते थे। तो रोज जो गार्लैंड्स बनती थी भगवान की, उसमें लोटस होते थे और बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई, बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट किया जाता था। तो कहने करते हैं यहाँ पे कि दिस लोटसेस आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो इसका तुलना है ना भगवान के कुछ बॉडी फीचर के साथ किया जा सकता है, बताने के लिए भगवान के बॉडी फीचर्स कितने सुंदर है अपने आप में। तो इसलिए ना भागवतम एक ग्रंथ है जिसमें कि उत्तम श्लोक बहुत ही एक चॉइसेस पोइट्रीज में इन बातों को बोला गया है। लेकिन कई बार हो सकता है कि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस के कारण हम उस चॉइसेस पोइट्री समझ ना पाए। हमें हो सकता है कि लगे इसमें क्या है, इतना विशेष क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द लोटस। लोटस में क्या है, नॉर्मल सा लोटस है कि नहीं, हमें हर जगह लोटस दिख जाएगा, या इधर दिख जाएगा, उधर दिख जाएगा, कीचड़ में दिख जाएगा, तो हम अपना ध्यान हो सकता है उस पर ना दें, इसमें विशेषता क्या है उसके अंदर। तो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट डिवोशन। इसीलिए ये बात यहाँ पे आएगी, भी आगे भी आएगी इसमें वर्ष के अंदर, जिसमें कि परीक्षित महाराज खुद इस बात को बोलेंगे कि कुछ लोगों को वैसे भगवान की हरी कथा भी बहुत अच्छी नहीं लगेगी और अच्छी लगती भी नहीं है कि नहीं हरी कथा, क्योंकि हरी का ग्लोरिफिकेशन है, हरी ग्लोरिफिकेशन से हमें क्या मिलने वाला है। कई बार भौतिकतावादी लोग कहते भी हैं कि भाई आपकी ये हरी भगवान की ग्लोरिफिकेशन से, भगवान की कथा से क्या किसी का पेट भर जाएगा, किसी का पेट भर जाएगा या समाज की स्थिति सुधर जाएगी, क्या बेनिफिट क्या है, व्हाट इज प्रैक्टिकल, प्लीज लेट अस नो व्हाट इज प्रैक्टिकल।
तो लोग नहीं समझ पाते कि भगवान की हरि कथा क्या देती है, व्हाट्स द बेनिफिट्स हैं वो, जो कि नॉर्मली हमें दिखेंगे नहीं कॉमन आंखों से। अब उसके हम मीनिंग को ट्रांसलेट करके आज बताते हैं कैसे कैसे, वो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स हम किसी और फॉर्म में आज दे रहे हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिट पहले बताते हैं, फिर हम उसके इनडायरेक्ट वेज बताएंगे क्या क्या है। तो हरि के बारे में, भगवान के बारे में सुनने से क्या क्या होता है। पहला चीज बताते हैं भव औषधि। भव औषधि का मतलब होता है कि यहाँ पे एक भव रोग है, बीमारी है, बीमारी का इलाज होता है। वो बीमारी है भव रोग, इसे कहते हैं भव रोग। भाई भव रोग हर व्यक्ति को इस संसार के अंदर, उसको पता नहीं वो रोग से पीड़ित है, लेकिन हर व्यक्ति भव रोग से पीड़ित है संसार के अंदर। ये क्या है भव रोग? भव रोग है खास करके बताते हैं टेकिंग दिस बॉडी, शरीर को प्राप्त करना, जिसको कि प्रभुपाद कहते हैं इट्स ए वेरी बैड बार्गेन। बैड बार्गेन मतलब कि बड़ा खराब सौदा है। बताओ एक दिव्य चिन्मय आत्मा जो कि भगवान के साथ कथा गानम नाट्यम गमनम अपिवंशी प्रिय सखी, आनंद के साथ भगवान के साथ गाना, नृत्य करना, भगवान के पास टाइम से पार्टिसिपेट करना, है ना, जहाँ पे कोई प्रकार का दुख क्लेश कुछ भी नहीं है भगवान के धाम के अंदर, उसको छोड़ करके, उसको पा करके वो मल मूत्र के भंडार में पड़ी है, आके सोचो, है कि नहीं? कितना गंदा शरीर है कि नहीं? शरीर में बताओ कोई ऐसी चीज है जो काम आती है, जो शरीर से आपके क्या क्या नहीं निकलता है, बहुत चीज निकलती है शरीर से, तो कुछ है जिसको प्रिजर्व करके रखना चाहेंगे हम? कुछ भी नहीं। इतना गंदा शरीर होता है ये, इतना गंदा होता है कि इतने इस शरीर के ऊपर एक वस्त्र भी डाल दिया ना, उसको भी धोना पड़ता है अगले दिन। कितना गंदा शरीर है सोचो। इस शरीर के ऊपर एक कपड़ा भी डाल दिया आपने तो धोना पड़ेगा उसको। लेकिन क्या होता है, लोगों को इस शरीर से बहुत प्रेम होता है कि नहीं? सो टू मच पैम्परिंग। तो ये रोग एक्चुअली, टू मच अटैच टू द बॉडी is the disease of this modern society or even the conditioned life basically speaking strictly। तो ये भव रोग है। अब इस भव रोग से होता है क्या, जब व्यक्ति शरीर से अटैच होता है तो he has to take this birth again and again in this world। उसको बारंबार क्या होता है, इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। भाई जन्म मृत्यु के सागर से ना, हर एक जो सीरियस स्पिरिचुअलिस्ट होता है, एक बहुत ही एक सिंसियर स्पिरिचुअलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, भक्त नहीं बोल रहा। स्पिरिचुअलिस्ट मतलब वो ज्ञानी भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है, कुछ हद तक में भी कर्मी भी, चाहता तो है ही लिबरेट करना, पर उसको तरीके नहीं पता है कैसे होते हैं वो। तो इन सब के माध्यम अगर आप देखोगे ध्यान से ना, दे ऑल वांट टू गेट लिबरेट फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, द डिजीज ऑफ देयर लाइफ, बट द अनफॉर्चुनेट कंडीशन इज व्हाट दे डोंट नो हाउ टू डू सो। उनको ये नहीं पता कि उसको किया कैसे जाता है, हाउ टू डू सो। बट यस, दिस कैन बी डन। ये होता है, कैसे हो सकता है? जस्ट कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद लॉर्ड हरि, भगवान हरि के संदर्भ में। और यही श्रीमद् भागवतम कंटिन्यूसली बारंबार बताती है कि हरि के संपर्क में आने से व्यक्ति का मुक्ति का द्वार खुल जाता है, खुल जाता है बहुत जगह आसानी से। बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, ये सब तो आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, जानते भी हो। लेकिन बस इस हरि शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि हरि शब्द ये शब्द है जो कि संसार से व्यक्ति के दुख पाप और चित और संसार से मोक्ष तीनों प्रदान कर सकता है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष लीला में जो भगवान के अवतार आए थे वो हरि थे, नाम उनका। वो गजेंद्र को बचाने आए थे, निकालने आए थे। लेकिन बात आती है कि चलो गजेंद्र ने तो अंत समय में सब कुछ किया था और उसके पिछले जन्म की अपनी स्वीकृति थी, लेकिन इस करंट लाइफ में यहाँ पे जब हम रह रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या कनेक्शन है भगवान से, हाउ वी कैन कनेक्ट विद कृष्णा। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मीडियम बाय हियरिंग द कृष्ण कथा। भगवान के बारे में सुनने से क्या होता है ना, वी गेट दैट रिमेम्बरेंस बैक। धीरे 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 हमारी याददाश्त वापस आती है। और वो याददाश्त क्या है कि जीवन स्वरूप हुए कृष्ण दास। व्यक्ति को ये पुनः पुनः याद आता है कि वो एक शरीर नहीं है, वो भगवान का दास है, भगवान से उसका बड़ा डीप कनेक्शन है। और पुनः पुनः ये बार बार आता है, इसको एक बार हियरिंग या दो बार हियरिंग से नहीं होता है, इट इज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, राइट। भगवत। और जो लोग लिबरेटेड हैं, जो मुक्त हैं, है ना, मतलब कि जो शारीरिक स्तर से ऊंचे हैं, तो उनके लिए क्या, उनके लिए भवौषधि नहीं होती है, इनके लिए क्या है, मनोभिराम। उनको बहुत मजा आता है इसमें। दे रियली लाइक इट टू हियर अबाउट कृष्ण, दे रियली लाइक इट कृष्ण। और प्रभात उदाहरण भी दे रहे हैं कि भारत में तो देखो जो जन्म लिया है ना, वो कहीं ना कहीं मुक्ति के द्वार पे खड़ा है, बस एक स्टेप बढ़ाना है उसको आगे। ऑलरेडी इंडियंस आर लाइक 98-99% लिबरेटेड, होते ही लिबरेटेड, होता है कि नहीं? मतलब इंडियंस कुछ भी चाहे एक लेवल के आगे भोग विलास तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। उनका अंदर का जो क्या कहोगे उसे, अंदर आत्मा कह लो, कंसाइंस कह लो, वो अलाउ ही नहीं करेगी उसको करने के लिए।
कैसे करेगी बताओ। जैसे यहाँ पे कितना भी व्यक्ति नशा कर ले, एक लिमिट के आगे नहीं जा सकता, उसको शर्म आएगी करने में। किसी का कितना भी चक्करबाजी चल रहा हो, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, कुछ हो, तो छुप छुप के करेगा, खुल के नहीं काम आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसको पता है वो गलत कर रहा है, he knows it is wrong, है कि नहीं? खुल के नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो गलत है, he knows it is wrong, that's why वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं शो करने का। बट वेस्ट में नहीं है ऐसा, वेस्टर्न कल्चर इज वेरी डिफरेंट, वहां पे हर पाप खुल के करेगा। क्यों करेगा? कि उसको कॉन्फिडेंस है कुछ गलत नहीं है इसमें, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। इंडियंस के साथ नहीं हो सकता ये चीज, आप देख लेना, कोई भी प्रकार का पाप हो। इसीलिए इंडियंस की कंसाइंस में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, लेकिन ये गारंटी है कि उसको ये भगवत गीता भागवतम इसके विषय में बताओ ना, तो लोग आते हैं सुनने के लिए। भारत में तो खास करके आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ हो तो आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य उसमें बस एक ही है कि लोग सुनने गलत सोर्स से जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे गलत सोर्स का विषय भी आता है कि when we hear from the wrong sources where Krishna consciousness are prone to be destroyed। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम हरिपूथा कथामृतम, ये सनातन गोस्वामी कोट करते हैं, अवैष्णव। क्योंकि वैष्णवों के बिना किसी से सुनते हैं ना, तो होता क्या है इस हरि कथा के साथ, तो कहते हैं सर्पोच्चिष्टम यथोपय। बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। जैसे कि दूध है, दूध कैसा होता है पीने में? अच्छा होता है ना, न्यूट्रिशियस होता है। दूध पियोगे तो सेहत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होती है दूध पीने से। लेकिन मान लो दूध को खाली सांप ने मुंह लगा दिया, छोटा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा जीभ नहीं होता ना सांप का, छोटा सा सांप है, जहरीला सांप है, उसने जीभ लगा दी अपने दूध में, और दूध वैसे ही दिख रहा है आपको। दूध कैसा है? वाइट वाइट ही दिख रहा है दूध, ऐसे नीला पड़ गया दूध या काला पड़ गया। लेकिन जब पियोगे तो क्या होगा? मर जाओगे डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें खत्म हो जाओगे, फिनिश, राइट, विल फिनिश। तो सेम थिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जब अनबोनाफाइड सोर्स से सुनी जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाए व्यक्ति की। फिर पता है, फिर लोग भागवत कथा या भागवतम या इसका इस्तेमाल फिर कुछ उस पर्पस के लिए करते हैं जो कि थोड़ा मेटलिस्टिक पर्पस होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कई जगहों को लोगों को शुभ शुभ कार्य कराने हैं, कुछ शुभ कार्य कराने हैं, मान लो कहीं पे घर में शादी होनी है, कुछ ये होना है, कुछ माहौल को थोड़ा शुभ करना है, तो भागवत कथा करवाते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर्स को बुला के, कि उनको बुला लो यहाँ पे 7 दिन का भागवत करा दिया जाए, या 3 दिन का भागवत करा दिया जाए, या ये करा दिया जाए, वो करा दिया जाए। उससे क्या होगा? हमारा माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, माहौल बेटर हो जाएगा, यहाँ का शुद्ध हो जाएगा। तो ये एक कन्वर्ट किस में हो जाता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेसिकली द पायसनेस, पिटी, एक पुण्य कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। बट ना पुण्य कार्य में और कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत डिफरेंस है, इसको हमें जानना चाहिए। पुण्य कार्य क्या होते हैं? कि पुण्य कार्य आपके होते हैं लाइक कुछ मेटल बेनिफिट्स के लिए होते हैं, कि हमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ लाभ, लाभ का मतलब है ना, धन मिल जाए, सुख मिल जाए, कोई भौतिक सुविधाएं मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, ऐसे नाना प्रकार के लोगों की इच्छाएं होती हैं। तो नॉर्मली फिर लोग भक्ति से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। जब ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं देन लाइफ बिकम्स नॉट सो ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति के अंदर वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, उतनी ब्लिसफुल होती नहीं है, उतना मजा नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि वहां पे संबंधों में क्या हो चुका है, भगवान और जीव के बीच में कुछ मतलब आ चुका है। जब भी किसी संबंध में मतलब आ जाए ना, संबंध में मतलब समझते हैं ना, कोई आप मान लो आपसे कोई बहुत प्रेम कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मतलब होटल में गए खाने, और खाने गए तो देखो वेटर आपसे कितना प्रेम कर रहा है, जैसे ही आओगे दरवाजा खुलेगा, आइए सर, बैठिए सर, व्हाट विल टेक सर, क्या लेंगे आप? फिर आप बताओगे अच्छा यहाँ का डोसा कैसा है, बोलोगे सर इट्स एक्सीलेंट, बोलेगा ये है वैसा, तो मतलब इतना प्रेम से आपको डील करेगा, आपको लगेगा कि कितना प्रेम करता है मुझसे, ये इतना प्रेम से खिला रहा है मुझे, कितना वो कर रहा है। बट हार्ट टू हार्ट आप जानोगे कि कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है, इतना क्यों ये प्रेम दिखा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट एट द एंड। आखिरी में कुछ तो लेगा हमसे, लेकिन नहीं, टिप लेगा या बिल लेके आएगा आपके लिए, है कि नहीं? जो टिप लेगा वो चीज आपको क्या देगी अंदर से, कि यार जो भी उसका जो संबंध है ये सही नहीं था, इसकी बातें खाली किस लिए थी, मेरे को पैम्पर करने के लिए थी, मेरे ईगो को पैम्पर करने के लिए थी, राइट, गेटिंग दैट इंप्रेशन। सेम चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ भी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब एक जीव के बीच में और भगवान के बीच में
जब कुछ जीव का मतलब आ जाता है ना, वैसे भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीव का जब कुछ मतलब आ जाता है वहां पे, तो उस टाइम पे पता है क्या होता है? उस टाइम पे यही समस्या आती है कि जीव अपने पथ से भटक जाता है। वो जो प्योर ब्लिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का ना, उसको नहीं प्राप्त कर पाता है। इस बात को जो लोग समझ जाते हैं, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी अप्रोच को चेंज कर लेते हैं। तो उनकी अप्रोच जो कृष्णा कॉन्शियस में हो जाती है, दैट इज ओनली फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, दैट इज नॉट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन सेल्फ। ये बहुत सूक्ष्म है जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही सूक्ष्म पहलू है कि भगवान की प्रसन्नता ज्यादा देखते हैं rather than अपनी प्रसन्नता देखने की। और इस कॉन्शियसनेस में जब कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? व्यक्ति को मुक्त करती है। सी, प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस इज नॉट सफिशिएंट। प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस इन द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ये है, सूक्ष्म पहलू है, लेकिन इस पे हमें थोड़ा सा समझना और विचार करना चाहिए कि ये सूक्ष्म पहलू क्या है। व्हाट इज दैट डीप एस्पेक्ट ऑफ दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निवृत्त तरशर उपगीयमाना। तो जो निवृत्त तरशर हो जाते हैं, तृष्णा समझते हैं? तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है एक प्रकार की प्यास। और प्यास किस चीज की? इस संसार में भौतिक भोग वासनाओं की प्यास, भयानक प्यास है ये। लगे हुए हैं लोग, सुबह से देखो गाड़ियां भाग रही हैं इधर से उधर, इधर से उधर, उधर 5-6 बजे से ही शुरू हो जाता है, पे 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 बजता रहेगा 12 बजे तक। कभी सोचो क्यों ये गाड़ियां चल रही है ना? क्यों ये मोटरसाइकिलें चल रही हैं? क्यों ये मेट्रोस चल रहे हैं? क्यों रेलवे चल रही है? इतनी सारी फ्लाइट्स हैं, आती जाती रहती हैं। पूरा इसको ग्रॉसली देखो इस दुनिया को, तो क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग सो? व्हाई दे रनिंग? व्हाई द पीपल आर रनिंग? जस्ट स्टॉप देम एंड आस्क, प्रभु व्हाई आर यू रनिंग? आप क्यों दौड़ रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? वो इतना वो है, बॉक्ड है, इतना उसका माइंड कॉन्शियस है, इतना एब्जॉर्ब्ड है उस चीज में कि वो जवाब भी नहीं देगा इस बात का कि व्हाई आई एम डूइंग सो। जस्ट आई हैव टू रन, आई हैव टू रन, आई हैव टू रन, आई हैव टू रन, आई हैव टू रन। ये भागवतम कहती है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदंत्रिय प्रीति आपनोति। पीपल आर रियली मैड एंड रनिंग अगेन अगेन। है कि नहीं? दुनिया पागल है कि नहीं? और शहर के जीवन में जरूर दिखेंगे आपको पागल। थोड़ा सा वैदिक लाइफ में गाँव में या उधर जाओगे तो वो इतना नहीं है, ठीक है। एक चक्र गांव में गए थे, देखें कितना आराम से लोग रह रहे हैं, अपना जीवन आराम से कट रहा है, स्वस्थ भी हैं और मजबूत तगड़े हट्टे कट्टे भी हैं, कोई बीमारी नहीं। हमारे यूथ फोरम में आधे लोग को बैक की प्रॉब्लम है कोई कमर लेके बैठा है, कोई पीठ लेके बैठा है, 20-20, 22-22 साल में, है कि नहीं? बहुत सारे हैं। कैंप में भी गए थे एक दो बार, तो इनका भी समस्या, कहीं पीठ का समस्या, कहीं कोई समस्या। हम बोले देखो कितने स्वस्थ हैं ये लोग, 40 साल के, 40 नहीं, हमारे साथ जो संकीर्तन करते बूढ़े बाबा आ गए, कम से कम 70-75 से कम के नहीं होंगे, खूब नाच रहे थे वो। ब्लिस, पता नहीं क्या हो गया उनको क्या, हमें भी समझ में नहीं आया, कोई दिव्य शक्ति काम कर रही थी वहां पे। 70 साल से कम के नहीं होंगे, एकदम मतलब थिन बॉडी, छोटे से, और खूब नाच रहे हैं संकीर्तन, है कि नहीं? याद है? तो खूब नाच रहे थे, करते करते नाचते नाचते गए हमारे साथ बंकी महाराज जी के मंदिर, तो वहाँ भी खूब डांस वांस हुआ। फिर वो भी बैठ गए, हम लोग कीर्तन कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं कौन लड़के हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हो रहा है तो वेरी ब्लिसफुल, एक नेचुरल ब्लिस था, जो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ देख पाना, शहरों में नहीं दिखेगा हमको। ब्लिस क्या है, एक एक्सप्रेशन होता है चेहरे का, तो इतने ब्लिसफुल। तो मैंने एग्जांपल वहाँ पे दिया था एक दो लोगों को, सबको तो नहीं। तो मैंने बोला कि दिस इज व्हाट नेचुरल वे ऑफ लाइफ इज। और 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन में प्रभुपाद के जब 7 पर्पसेस पढ़ोगे ना ध्यान से, तो वन ऑफ द पर्पस है, वन ऑफ द पर्पस प्रभुपाद लिखते हैं, टू टीच द ह्यूमैनिटी एट लार्ज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। नेचुरल वे ऑफ लाइफस्टाइल जीना और लोगों को सिखाना भी, भाई एक एक प्राकृतिक जीवन कैसा होता है उसको सीखो, तो उससे सुखी भी रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे, है कि नहीं? और फिर कृष्ण कॉन्शियस को भी डेवलप करना आसान है। एक बीमार शरीर में, एक रोगी शरीर में, एक दुखी शरीर में, एक स्ट्रेस से भरे शरीर में, है ना, एक स्ट्रेस से बड़ी चेतना में, इनमें कृष्ण कॉन्शियस कैसे डेवलप कर लोगे आप? इज पॉसिबल? बताओ, इट इज पॉसिबल। आपका सर दर्द है, बुखार है, पेट खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, मन अच्छा नहीं लगता आपको, स्ट्रेस इतना है, एग्जाम का प्रेशर है, जॉब की कमिटमेंट्स हैं, और उसके बाद आपसे बोले प्रभु कृष्णा कॉन्शियस प्योर भक्ति डेवलप करके दिखाओ तो इट्स लाइक वेरी वेरी इनकम्पेटेबल सिचुएशन, इट्स वेरी इनकम्पेटेबल।
सो कृष्णा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जब एलिवेट होते हैं ना, तो ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल वे ऑफ लाइफ, द नेचुरल वे, इस नेचुरल वे में जीना। जैसे आप देखोगे धीरे धीरे अब सब पुराने होते जाते हैं, तो देखते हैं ना धोती कुर्ता पहनना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा नेचुरल है कि नहीं धोती कुर्ता पहनना, बड़ा आसान ना, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कठिन है धोती कुर्ता पहनना। इजी ड्रेस, इजी टू वियर, इजी टू वॉश, इजी टू ड्राई, है ना, फुल्ली वेंटिलेटेड है कि नहीं। और क्या क्वालिटी इसकी, बेटर क्वालिटीज है। स्किन डिजीज नहीं होगी आपको, स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं है आपको, स्वेटिंग की दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिकल है कि नहीं, इकोनॉमिकल वन ऑफ द बेनिफिट्स। कितने बेनिफिट है नहीं, तो पूरे संसार में धोती कुर्ता का मैं प्रचार प्रसार कर देना चाहिए। इंडियंस है, दिस इज कॉल्ड इंडिया, दिस इज इंडियन ड्रेस। बड़े बड़े राजनीति से लेकर के बड़े बड़े लोगों तक ने इसको धारण किया हुआ। देखा अर्जुन को जीन्स लड़ाई करते हो कहीं पे कि अर्जुन जीन्स पहन के डिवाइस की, चल कृष्णा चल, चला तो अब चलाता हूँ, गोलियां चलाता हूँ लड़ाई भी नहीं होती है जीन्स में लोगों से। देखा एक बार देखा लड़ाई करते हुए जीन्स में, दो लड़ रहे, एक लात मारने की कोशिश भी कर रहा था तो उसका पैर भी नहीं उठ रहा था ठीक से, मार भी नहीं पा रहा, लड़ाई भी नहीं हो पा रही थी अच्छे से। तो कहने का मतलब है, बहुत कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए कि द नेचुरल वे ऑफ लाइफ पे खान पान है, इजी है ये, तो ये तो कहने का मतलब है कृष्णा कॉन्शियसनेस in the mood of detachment when practiced gives us detachment from the trishna. This word is very important. This trishna जो यूज किया है, निवृत्त तृष्णा उपरगीय माना। इसलिए भागवतम में, भगवत गीता में रजोगुण का जब गुण पढ़ोगे ना, तो उसमें कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि, है ना, उसमें तृष्णा एक शब्द आता है। ये अनलिमिटेड हैंकरिंग है इस दुनिया के अंदर। और हैंकरिंग को भी अगर ध्यान से स्टडी करोगे ना, थोड़ा सा बुद्धि से शांति से समझने की कोशिश करोगे, तो पता है क्या है, खाली इंद्र तृप्ति है। और उसी में बहुत ज्यादा डीप में जा जाके, बहुत गहराई में जाके इंद्र तृप्ति करनी है। इंद्र तृप्ति से इतना रस निकाल देना है, इतना रस निकाल देना है, ये लगे कि मतलब रस है इस दुनिया के अंदर। अभी देखो पहले के लोग होता था कि अगर इंद्र तृप्ति से रस निकालना भी होता था तो बहुत ही क्रूड लेवल पे निकाल दिया करते थे। क्रूड लेवल का मतलब होता है कि चलो जी मीठा खाना है गाँव में, तो गुड़ ले आओ जी, गुड़ ले आओ, तो गुड़ ले आए, पानी पी लिया, हो गया जी, इतनी इतनी इंद्र तृप्ति हो गई। अब थोड़ा मोड़ा कुछ हो गया। अब आप जाके देखो इंद्र तृप्ति की इतनी वेराइटीज हैं। मीठे को ही ले लो आप, मान लो मीठा ले लेता हूँ मैं एक सीधा उदाहरण, देखो मीठे में कितनी वैरायटी मिल जाएगी। हेल्दी कई बार तो प्रभाविक रिकमेंड करते हैं डिवोटीज, अच्छा अच्छा प्रसाद खाते हैं उसमें स्वीट्स ये सब, तो चलो दैट इज लाइक ऑफर टू कृष्णा देन टेकन। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटलिस्टिक वर्ल्ड। एक आइसक्रीम की शॉप पर चले जाओ, है कि नहीं, आइसक्रीम की शॉप्स में चले जाओ और देखो इतनी वैरायटीज है कि नहीं, चाय कॉफी कितनी बड़ी वैरायटीज हो गई है। अभी हम लोग का एक जीबीसी कॉलेज में प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो ऐसे मिशन स्टेटमेंट विजन स्टेटमेंट बता रहे थे। तो मिशन स्टेटमेंट के अंदर एक चेन है कॉफी की, उसका नाम है स्टारबक्स कॉफीज, स्टारबक्स, है कि नहीं, तो उसका मिशन स्टेटमेंट बता रहे थे। मैं बताऊँ कि एक व्यक्ति की एक सोच, खाली कॉफी पिला पिला के इतना बड़ा वर्ल्ड में चेन बना दिया उसने और बड़ा अच्छा उसका मिशन स्टेटमेंट था, है ना, कि वन कप एट ए टाइम, वंस इन अ नेबरहुड, ऐसे कुछ करके बड़ा अच्छा सा मतलब नाम दिया था उसने मिशन। और सोचो कितनी सोच है, कितनी सोच इन्वेस्ट की गई है खाली जीभ की तृप्ति के लिए। एक छोटा सी चीज बता रहा हूँ, जस्ट स्मॉल थिंग, कॉफी। फिर खाने पीने को देखो आप, इतनी वैरायटीज हैं, क्लब रोड पे चले जाओ देखोगे वो एक के बाद एक ब्रांड्स हैं, खाने की ये ब्रांड, खाने की वो ब्रांड। जस्ट सिंगल सेंस, एक सिंगल सेंस के लिए इतनी ज्यादा वो है। उसी प्रकार से कानों और आंखों के लिए देख लो आप, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर इंस्टाग्राम है, फिर ये है, मूवीज है, ये है वो है, इतना एक्सपेंशन है। इस क्रिएशन, इस पूरे वर्ल्ड की क्रिएशन के समझने की कोशिश करोगे आप, देखोगे ये, देन यू सी ऑल द स्मेल, इतने सारे कोलोन्स हैं, टैल्क्स हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं। पूरे फ्रांस तो मशहूर है इस चीज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ पे शहरों के नाम, सेंट्स जो हमारे आते हैं, कोलोन जैसे एक नाम है, दैट कम्स फ्रॉम फ्रांस। उसमें इतनी वैरायटीज, इतने सारे सेंट्स वगैरह बनते हैं। और कौन सा बचा, देन वी हैव आईज ईयर्स, हाँ स्पर्श, स्पर्श के लिए देख लो इतना कंफर्ट है,
इतने कंफर्ट्स पे खर्च करते हैं लोग, इतने कंफर्ट्स पे। फ्लाइट्स में जाओगे तो आपको थोड़ा स्पेयर स्ट्रेच करने के लिए 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, ताकि आप थोड़ी एक बेटर सीट ऑफर ले सको आप, है कि नहीं? जस्ट जस्ट मैं छोटी बात बोल रहा हूँ, बोले जी हर चीज पिंच कर रहे हैं हमें तो चोट हो रही है, हमें तो एक बात सुन सुन के, बट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कंफर्ट्स, कंफर्ट्स के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं लोग, है कि नहीं? तो कंफर्ट्स पे बहुत है, कंफर्ट्स इज वेरी मच रिलेटेड विद द सेंस ऑफ टच। और ग्रॉस एग्जांपल जो सेंस ऑफ टच का, तो इस दुनिया में आप देखोगे सेक्स लाइफ के प्रति कितना इन्फैचुएशन है लोगों में, इतना रिसर्चेस किए जा रहे हैं बैठ के, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा रही हैं। एक बड़ी बुक आई थी सेक्स एंड द योगा, कैसे अच्छे अच्छे से योगा आप प्रैक्टिस कर सकें ताकि एकदम आप सेक्सुअल लाइफ में एक्सपर्ट हो सकें आप, है ना? पूरा विज्ञान लगाया हुआ है दिमाग, मतलब कुत्ते और सुअर भी ऐसा काम नहीं किए होंगे। बड़ा है कोई कुत्ता योगा कर रहा है कहीं बैठ के, प्राणायाम में लगा हुआ है, फिर आसन कर रहा है नाना प्रकार के, क्योंकि उसको एक बिच होती है कुतिया, उसके साथ संग करना है, तो अच्छा योगा करके जाएगा तो मतलब ऐसे सब्जेक्ट मैटर में रिसर्चेस हो रहे हैं, पेपर्स लिखे जा रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो आप सोचिए कितना मतलब बुरा हालत है समाज का। और ये एक शब्द में खाली मैं बोल रहा हूँ आपको, तृष्णा, यही दैट्स ऑल व्हाट इट डिफाइंस द होल सिस्टम। तो जो व्यक्ति इससे निकल चुका है, निवृत्त तृष्णा, उसके लिए एक्चुअली एक हरि कथा क्या है, मनोअभिरामा, ही रियली रिलिशेस इट। तो जो रिलिश की बातें करते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियस को रिलिश करना चाहते हैं, दे हैव टू नो द प्लेटफॉर्म वेयर इट कैन बी रिलिश्ड। कहाँ पे वो रिलिशमेंट हो सकता है, वो प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म ये है निवृत्त तृष्णा। जब तक निवृत्त तृष्णा नहीं है तब तक क्या करना चाहिए, व्यक्ति को पहला वाला पार्ट ले लेना चाहिए। पहला वाला पार्ट कौन सा है, भवौषधि। भवौषधि, औषधि जानते हैं ना, औषधि केंद्र खोल रखे हैं जगह जगह, प्रधानमंत्री औषधि केंद्र है, औषधि दवाइयाँ, तो इसको दवाई की तरह लीजिए। तब तक दवाई के साथ क्या है, दवाई का डोज वो सब लिखा हुआ है। हमारे हमारे जो सुप्रीम डॉक्टर है हमारे लिए, प्रभुपाद है ना, डॉक्टर प्रभुपाद जी ने सब कुछ लिख के बताया हमें कि ये दवाइयाँ कब कब लेनी, कैसे लेनी है। तो उन्होंने साहब क्या लिखा है, 16 माला रोज लीजिए चेतना के लिए अपने, और फिर 4 चीजों से परहेज करिए। तो परहेज भी लिखा हुआ है और दवाई भी दी हुई है। तो अगर परहेज और दवाई को अच्छे से लेंगे तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, निवृत्त तृष्णा। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सभी को एक ही प्रिस्क्रिप्शन मिला है, कोई अलग दवाई नहीं मिली है सबको, मंत्र एक ही दिया है सबको, ठीक है ना। 16 माला करनी है उसकी, तो 16 से कम नहीं करनी, तो जो 16 पे नहीं, कोशिश करिए धीरे धीरे 16 पे आने की, दवाई पूरी लेंगे तो जल्दी दवाई ठीक होगी, दवाई ठीक होगी। और 4 लेवल प्रिंसिपल्स, 4 लेवल प्रिंसिपल्स का मतलब है नो इलिसिट सेक्स, नो मेडिटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 चीजें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 4 चीजों को फॉलो करना। इसके बाद ये दवाइयों को लेते रहें, इसके लिए अपना एक प्रॉपर मोटिवेशन इम्पेटस बनाए रखें। इसके लिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, डिवोटी एसोसिएशन। कि डिवोटीज के संग में हमें क्या होता है, वो प्रेरणा मिलती है, वो शक्ति मिलती है कि हम उस चीज को कर सकें, वी कैन प्रैक्टिस इट। और इसमें एक चीज और आती है, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी सटली, कि जब ये ले रहे हैं साथ साथ ना, तो हमें हरि कथा को भी लेते रहना है साथ साथ। हरि कथा, क्योंकि हरि कथा भी क्या है, औषधि का रूप होती है। तो 16 माला 4 नियम, उसके अलावा भक्तों का संग, और इस हरि कथा का डेली सेवन करना। अब हरि कथा 2 माध्यम से हम लेते हैं। एक माध्यम होता है भगवान के बारे में सुन करके, लेक्चर्स को सुन करके, और दूसरा होता है कि वी रीड इट, जैसे श्रीमद् भागवतम को पढ़े, भगवद गीता को पढ़े। इसके लिए हमें अपना बनाना चाहिए डेली शेड्यूल में कि लेट्स टेक आउट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, कुछ तो निकाल के हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और फिर ये दवाई के बारे में प्रभात बहुत एक बल दे रहे हैं, और बल देते हुए प्रभात कह रहे हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं, इन दवाई को कैसे लेना चाहिए, आपको डेली तो लेना ही चाहिए। साथ ही साथ इस दवाई के साथ एक चीज़ और है कि ये कभी किसी गलत सोर्स से नहीं लेना चाहिए, वो मैंने आपको बताया, अवैष्णव खुद गिरनम। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसको सही सोर्स से ले रहे हैं, एंड फॉर अस द राइट सोर्स इज एक्चुअली श्रील प्रभुपाद। मैं कल गुरुग्राम में था, तो वहाँ के भक्तों को ये बात बता रहा था कि यू सी द लोएस्ट अटेंडेंस इन द इस्कॉन, है ना, इस्कॉन के अंदर अभी किसी भी क्लास होती है ना, उसमें सबसे लोएस्ट अटेंडेंस किस स्पीकर की क्लास में होता है, सबसे लोएस्ट अटेंडेंस किस स्पीकर की क्लास में होता है, श्रील प्रभुपाद की क्लास में।
जो कि जस्ट ऑपोजिट है। ही इज द प्राइम सोर्स। जितने हम लोग ज्ञान बिखेर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो सबका अल्टीमेट सोर्स कौन है? प्रभुपाद। प्रभुपाद से प्राप्त किया हमने। या धोती से डालने से लेकर तिलक लगाने तक हमने प्रभुपाद से सीखा है कि नहीं? प्रभुपाद की शिक्षाओं से सीखा है, और लोएस्ट अटेंडेंस वहीं पे आती है। क्यों? कि लोग अरे वही बातें तो फिर से बोलते हैं प्रभुपाद बार बार, वही शरीर वही आत्मा, वही शरीर वही आत्मा, कब तक सुनेंगे इसको? है कि नहीं? कुछ नया चाहिए, मसाला चाहिए, कुछ रस रस डालिए, रस। कुछ कुछ कार्टून नेटवर्क चलाइए हमारे आगे बैठ के ना, व्यास आसन में कुछ कार्टून वाली हरकतें करिए बैठ के, या कुछ हंसाइए, या कुछ चुटकुले सुना दीजिए, कुछ चलिए कुछ कुछ सुना दीजिए। यार ऐसे एक प्रोग्राम में गए तो वहाँ पे बड़ी फैमिली थी, बोले प्रभु जी कुछ सुना दीजिए, कुछ सुनाइए बस। उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत ही विचित्र है, मतलब महफिल जमाने वाले नहीं होते हैं लोग, होते कि नहीं, पैसे देके बुलाते हैं जिनको कि आप सुना दीजिए कुछ, बहुत ऐसा कुछ सुनाइए ना हम सनसनी हो जाए एकदम, मतलब फ्रस्ट्रेट बैठे थे हम, और थोड़ा सनसनी छा जाएगा, मतलब कुछ सुना दीजिए। तो हमें भी सबने, हम क्या सुनाए सनसनी के लिए, हमें भी नहीं समझ अभी कौन से मैटर उठाएं, कहाँ सनसनी क्रिएट किए जाए। तो हम एक्चुअली कीर्तन ही कर लेते हैं, कीर्तन अपने आप सनसनी बन गया कुछ देर बाद। तो खुद ही डांस वांस भी करने लगे, सब कुछ होने लगा, पैसे उड़ाने लगे सब। हाँ हम लोग गए थे, हम थे सिमनाथ थे, चुन थे, और भी थे गिरीश पुर, 4-5 लोग गए थे प्रोग्राम में गुड़गांव में। तो यही चाहिए लोगों को। फिर हमने हाथ जोड़ दिया कि भैया अगली बार जैसे प्रोग्राम में हम लोग तो नहीं आ सकते, सनसनी वाले लोग नहीं, हम लोग कहाँ सनसनी बनाएंगे। सनसनी के लिए हमने रेफरेंस दे दिया 2-3 लोग का, ये लोग सनसनी वाले लोग हैं, ये सनसनी बना देते हैं। तो इनको रेफर करी सनसनी के लिए। तो कहने का मतलब है कि सनसनी वाला काम नहीं है यहाँ। यहाँ पे पॉइंट है कि बाबा औषधि है कि नहीं, प्रभुपाद ने ऐसा थोड़ी सनसनी बनाने पूरा विश्व में निकले थे, है ना, अपना नाम ऊंचा करने के लिए निकले थे, या पूरा दुनिया में क्रांति मचाने निकले थे। He just went with a simple desire to serve his supreme, his spiritual master। प्रभुपाद के जो इनर कॉन्शियसनेस थी ना, यही थी, just to serve the spiritual master, just to please him। क्योंकि मैं 40 वर्षों से नहीं कर पाया इस बात को। 1922 में मेरे को बोला था फिर स्पेशल मास्टर ने, मतलब बुरा मत मानिएगा, फिर से कहीं हो सकता है इस बात को सुन के लगे कि फिर से टची वाली बात आ गई। कॉन्स्टिपेटिंग हार्ट बोलते हैं इसे। जैसे कॉन्स्टिपेटिंग स्टमक होता है ना, जब कुछ खा लें उल्टा सीधा, फिर हमारा 2-3 दिन तक पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, समस्या चल रही है, तो ऐसे कॉन्स्टिपेटिंग हार्ट हो जाता है कई बार। दिल में चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ बोले, कैसे बोले, किससे बोले, क्योंकि भाई अपनी भी तो वैष्णवता है। हम भी तो प्योर डिवोटी हैं कि नहीं? तो ये बड़ी समस्या। तो ठीक है, बाद में आगे व्यक्ति खुल गया, बोला आगे, तो फिर बाद में बोला बहुत ही बदतमीज भक्त हैं वो, ऐसे भक्तों के साथ हम नहीं रह सकते रोज। हम बोले क्या हो गया भाई, ऐसी क्या बदतमीजी कर, पूरे भरे उसमें सब डांस कर रहे हैं भाई, हमने उसको हाथ पकड़ के बुला लिया, ठीक है, मनमुटाव हमारा चल रहा था, कुछ था, सबके हाथ के सबके सामने मेरा हाथ उसने ऐसे कर दिया। बताइए बोलिए, ऐसा होता है? ये तरीका है कोई? ये है वो है, हम प्रेम देना चाह रहे हैं उसको, और उधर से हमें नफरत मिल रही है, तो ये तो नहीं हो सकता, ऐसे सही नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई वो तो किसने देखा? सबने देखा। मैंने बोला अरे बाप रे, तो बहुत ही सीरियस मैटर हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सबने देखा, लेकिन कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, माइंड नहीं करते इस बात का। भाई दोस्ती आ रही है अपनी आपस में, छोड़ दिया उसने, नहीं आया तो गया। नहीं ब्रो जी, आप बहुत हल्के में ले रहे हैं मामले को। हम बोले यार ये तो हल्का वाला मामला, ये तो अब उसको कैसे समझाएं हल्का है? तो उन्होंने बोला फिर क्या करना है, तुम ही बता दो, कोई इलाज है इसका? कि नहीं, बस अब ये सीज फायर हो चुका है हमारा, अब कोई हम लोग का आगे बातचीत नहीं है। ठीक है, कुछ दिन शांति बरतते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे इसको सुलझाया जा सकता है। तो कुछ समय के बाद वेट करना पड़ता है कुछ चीज़ों में, 15-20 दिन के बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। फिर जब नॉर्मल हुआ तो फिर बैठाया गया दोनों को ऐसे, फिर बात निकली सन 1950 के दशक से। कहने का मतलब है इतनी बातें बैठी थी दोनों के हृदय में कि वहां से वो बोलना शुरू किया, वहां से वो बोलना शुरू किया, तुमने ऐसा किया था, तुमने वो किया था, तुम्हें याद नहीं उस दिन रात को ऐसा हुआ वहां पे, ये वो करके। हम बोले बाप हम तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देख रहे थे बैठ के, ये हो क्या रहा है।
तो मतलब इतनी बातें बैठी थी, उसी समय बोले ख़त्म कर लेते, इतने समय से ये करके, क्योंकि ये जो हाथ झटकना था, एक तो हुआ नहीं था, इसका कोई पास रिकॉर्ड था जिसके कारण ये सब हुआ था। तो ये जो मैं पॉइंट एग्जांपल देना चाह रहा था समझाने के लिए, दिस इज कॉल्ड अ वेरी टची नेचर। टची नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम अ सेंसिटिव नेचर। सेंसिटिविटी एक अलग चीज होती है, टचीनेस अलग चीज होती है। सेंसिटिविटी मतलब यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द स्पिरिट, द स्पिरिचुअल सोल देन द मैटर, है ना। एक्चुअली सेंसिटिव हार्ट का मतलब है मैटर डजंट मैटर्स। मैटर डजंट मैटर्स, मैटर का कोई मैटर नहीं है, इट इज टोटली वर्थलेस, वर्थलेस होता है। इस बात को समझना, जब ऐसा हृदय होता है किसी का ना, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस को पकड़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब हम, पॉइंट है कि जब हम मर्सीलेस होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे इसको करेंगे, प्रैक्टिकल वेज आई विल टेल यू कि इस मर्सीलेस नेचर को जब तक खत्म नहीं करते हृदय के अंदर से ना, तब तक वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स स्पिरिट नेवर कम्स। स्पिरिट मीन्स सुप्रीम स्पिरिट, कृष्णा। उसके लिए बहुत जरूरी है हमें थोड़ा प्रचार करना चाहिए। प्रचार हम सबके लिए ना साधना के रूप में दिया गया है। प्रचार हमारे लिए सिद्ध रूप में, हम कल्याण करने के लिए या कृपा करने के लिए नहीं जाते हैं। ये बात को समझना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि हम बड़ा उद्धार करने के लोगों का कृपा कर रहे हैं, आओ तुम्हारा हम उद्धार करें, तुम्हारे लोहिते आई नहीं, हम ही अवतार। कई बार भजन देते हैं, हम अवतार लिए हैं, हम अपने घर से अवतार ले क्या सड़क उतरे हैं, क्यों आए हैं, तुम्हारे लोहिते आमी। तुम्हारे लिए मैं क्या किया हूँ, अवतार लिया हूँ, है ना। पश्चिम बिहार से मैं अवतार लेके आज पंजाबी बाग में आया हूँ और वहां पे तुम्हें मैं उद्धार करने आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करने आया हूँ। तो हमारे लिए वो साधना में हेल्प करेगा। देखो, हम एक चीज एकदम क्लियर करनी चाहिए, विकसित अवस्था में कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस तो गलत वर्ड है, कृष्ण भक्ति को रिलीज करना और साधना भक्ति में कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस करना, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक व्यक्ति इंटर्नशिप में है, इंटर्न है अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है कंपनी के अंदर, और एक है वो प्रॉपर एम्प्लॉय अंदर जो काम कर रहा है। तो प्रेम की अवस्था में भक्ति और एक साधना की अवस्था में भक्ति में बहुत फर्क होता है, और हमको ही क्लियर होना चाहिए हमारी पोजीशन। मैं मैक्सिमम की बता रहा हूँ, कोई अगर प्रेमी भक्त है तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, बट मैक्सिमम ऑफ अस आर इन द साधना भक्ति कैटेगरी, और साधना में भी वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो जब हम उस लेवल पे है ना, तो हमें अपने नेचर ऑफ हार्ट पे वर्क करना पड़ेगा। और नेचर ऑफ हार्ट पे वर्क करने का मतलब है देयर मेनी एलिमेंट्स इन दैट पार्ट। कई लोग खाली एक ही चीज से चिपके रहते हैं, बस 16 वाला 4 नियम, 16 वाला 4 नियम और भगवत धाम। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पॉइंट है इसके पीछे कॉन्शियसनेस को भी मेंटेन कर सके, उसके लिए बहुत सारी और भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। 64 भक्ति ज्ञान रूप गोस्वामी ने एक एक बताए हुए हैं, नेक्टर डिवोशन पढ़िएगा आप जाके। तो ये क्यों लिखे फिर प्रभुपाद ने, इतने भागवतम के परपट्स क्यों दिए, इतने क्यों ग्रंथ लिखे गए, इतना क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। अगर 16 माला 4 नियम में बंदे के आगे बैनर लगा दे बड़ा, 16 माला 4 नियम भगवत धाम जाइए, भाई कुछ मत करिए यहाँ पे, ना डेटी वर्शिप करिए, ना कुछ करिए, ना भागवतम क्लास सुनिए, भागवतम करिए। तो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स व्हिच हेल्प्स अस टू मेंटेन मिनिमम दिस लेवल। उसमें से भी बहुत प्रोमिनेंट है प्रचार, और ये प्रचार हमारे आचार्य चाहते थे। ऑल द प्रीवियस आचार्यज वांटेड इट, दैट इट शुड बी प्रीच्ड। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर थे, भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत लॉन्ग एस्पिरेशन थी प्रचार की, तो खुद मेहनत किया था उन्होंने अपने टाइम पे। इतने सारे बताते हैं 250 से 300 भक्ति रिक्शा खोले थे। उसके बाद खुद इतनी पुस्तकें रात रात रोज लिखते थे, 6-6 8-8 घंटे बैठ के पुस्तकें लिखते थे। हम लोग गए, हम उनके घर कमरे में गए थे भी साना सुखद कुंज पे। तो इस बार भीड़ कम थी, भक्त कम थे, तो बड़े आराम से हमने एक एक चीज देखी थी। मैं, हम थे, नीरज वो थे, और शायद एक और भक्त थे, कौन था एक और भूल गए, चलो जो भी था, 3 लोग थे। हम लोग ने एक एक अलमीरा बड़े ध्यान से देखी। और जब अलमीरा से देख रहे थे एक एक चीज़ों को, तो हमने उसमें लालटेन देखा। लालटेन जानते हैं ना, गाँव में यूज़ करते हैं। तो इतने सरप्राइज, हम बहुत टच किया, देखो लालटेन रखा हुआ है, लालटेन में तेल डाल के जला करके रात भर लिखते थे। लाइट तो नहीं थे ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स। उनका पंखा देखा, अब पंखा कैसा था, ये तो चलो ऐसे स्टैंडिंग फैन, उसके नीचे मिट्टी का तेल डालना होता था, उससे वो एनर्जी जनरेट होगी, उससे पंखा चलेगा। वो उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी, एसी वैसी नहीं था,
एसी पंखा, ये वो छोटा सा पंखा हो बस मिनिमम हल्का हवा करने के लिए, और लालटेन की लाइट में रात भर आँख नहीं फूट जाएगी किसी की, रात भर लालटेन पड़ेंगी बैठ के। उन्होंने तो स्टोरियाँ सुनी है ना कि ये ले थे महान महान लोगों की स्टडी, ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, स्ट्रीट लैम्प में बैठ के उन्होंने पढ़ाई की, इतने बड़े मेधावी छात्र बन गए, और फिर इन्होंने मोमबत्ती में पढ़ के पढ़ाई की, गाँव में थे इतने बड़े वो बन गए, है ना, ऐसी कहानियाँ सुनते हैं थे ना इतने बड़े बड़े लोगों की। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा किया, सोचिए। और वो किसके लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको साधना भक्ति थी उनकी कि साधना करनी भाई इसलिए लिख रहे हैं, he really wanted a deep aspiration कि भाई इसको क्या करो, प्रीच करना है, we have to give them। तो वो तो अकेले थे उस टाइम पे, कोई और तो ऐसा था नहीं कि जिसको, जितने थे आसपास सब सही दिया। तो क्या करना था उनको, he was just writing, 6-6 8-8 घंटे लिखते थे, सोचो राइटिंग राइटिंग, इतनी बुक्स, हमें से कितनों को पता ही नहीं बुक्स क्या है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं तो कहें मरने से पहले हर किसी को सब बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, कम से कम प्रभात की तो सारी बुक पढ़ लेनी चाहिए, और प्रभात की सारी बुक पढ़ने में भी आपको 9 साल कम से कम लगेंगे। एक कैलकुलेशन की थी वक्त में, 1 घंटा रोज पढ़ेंगे तो आपको 18,000 श्लोक भागवतम के अंदर, आपके 11,000 के आसपास श्लोक चैतन्य चरितामृत में, 7 श्लोक भागवत गीता, इसके अलावा स्मॉल बुक्स इतनी सारी प्रभात ने लिखी है, इतने सारे मैटर है। उसके बाद अगर पढ़ लिए इसको, अच्छे से समझ लिए इसको 2-3 बार, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा भक्तिनाथ ठाकुर की राइटिंग्स पढ़ सकते हैं। ओ अल्टीमेट राइटिंग्स, एक एक राइटिंग्स के अल्टीमेट है। फिर भक्तिनाथ ठाकुर के इतने वैष्णव भजन से, इतने वैष्णव भजन, उसका राइटिंग्स, जैव धर्म, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स। तो रियल नेक्टर पड़ा हुआ है, वो जाके निकालना पड़ेगा ना। सपने देखने से नहीं आएगा, मैं ये तो पहले गारंटी बता दूँ। दिन भर आँख खोल के सपने देखते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज सिंपल इल्यूजन, वी हैव टू रियली एंटर समथिंग इनटू इट। इसमें जा कर के अंदर जाके देखना पड़ेगा। और ये एंट्रेंस मिलेगा कैसे, उसका सीक्रेट पासवर्ड बता रहे हैं। उसका सीक्रेट पासवर्ड ये है कि इनको जब प्लीज करते हैं, आचार्य को प्लीज करना, इन आचार्यों की इच्छा थी, है ना। भक्तिनाथ ठाकुर उदाहरण दिया मैंने आपको, भक्ति सिंह ठाकुर को उदाहरण दिया। भक्तिनाथ ठाकुर का जब भी जाओगे गौड़िया मठ के अंदर, चैतन्य गौड़िया मठ में, वहाँ बड़ा सा वो प्रिंटिंग प्रेस आज भी रखा हुआ है। अब सोचो वो चीज़ को प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए क्रांतिकारी कदम था भक्तिनाथ ठाकुर का। पूरी कोलकाता से स्पेशली शिप करके, ये अभी की नहीं, 1920s की बात है, जबकि बहुत ही मुश्किल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय चीज़ों को करना। वहाँ से पूरे शिप में पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस को लोड करके वहाँ से लेकर के मायापुर ला के स्टैब्लिश करना, और फिर उसमें वहाँ प्रिंटिंग होती थी। इतना आवाज़ करता था, काट 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 काट। कई पुराने प्रिंटिंग प्रेसेस सुनने होंगे कहीं पे आपने, तो फिर डिजिटल आ चुके हैं, तो बहुत आवाज़ करता है प्रिंटिंग प्रेस। और वहीं सामने के अंदर गिरधारी का ऑल्टर। तो कई सारे शिष्यों को लगता था ये क्या है, ये महाराज, गुरु महाराज क्या किया, ये तो इतना आवाज़ कर रहा है। कृष्ण को तो मधुर मधुर कीर्तन सुनाना चाहिए, है कि नहीं। कृष्ण को मधुर कीर्तन, मधुर वाद्य मंत्र ये सब बजा करके मधुर कीर्तन होना चाहिए। तो भगवान ठाकुर बोलते थे इससे बजा मधुर कुछ नहीं है। भगवान को क्या अच्छा लगे कान को, आचार्य जानते थे। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस की आवाज़ है ना, खट 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 चल रहा है, वो ज़्यादा मधुर लगता है उनको। क्योंकि इससे क्या होगा, इसका नाम था बृहत मृदंगा। बृहत मृदंगा, बड़ा मृदंगा है ये। तो ये क्या है कि दूर दूर तक आवाज़ जाती है इसकी। और यहाँ बैठ के लिखेंगे इसको, और एक बार पब्लिश प्रिंट हो गया तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा वो, कितने दूर तक इसकी आवाज़ जाएगी। आवाज़ पता है कि आज टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सब है, इतना हाई फाई, लोगों के अंदर सब्सटेंस ही नहीं कृष्णा कॉन्शियस देने का। ऑनेस्टली बताएं, आज कुछ भी कृष्णा कॉन्शियस आप देते हैं, none of the people have transformations. The only reason the substance matters. Then मैंने प्रीचर्स फोरम में कल एक मैसेज डाला था, जो फैसिलिटेशन वाली टीम है, उसमें एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था, उसमें बताया था पैकेजिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। पता नहीं पढ़ा था कितने लोगों ने। तो सब्सटेंस, वो जो कृष्णा कॉन्शियस का कोर सब्सटेंस है ना, वो बहुत जरूरी है। और वो आचार्यों के पास था, लेकिन आचार्यों के पास वो फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पे, फैसिलिटी नहीं थी उनके पास कि इतना। जैसे भक्ति ठाकुर का बताया, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर बताया, प्रभात तो खुद करना पड़ता था, खुद लिखते थे पेपर। भिक्षा में प्रभात रोटी चावल नहीं मांगते थे, दाल नहीं मांगते थे जाके, है ना, चना नहीं मांगते थे जाके। प्रभात ऐसा कहते हैं कि ऑल दिस साधुज आर आस्किंग फॉर चना एंड रोटी, बट आई डोंट आस्क दैट, आई आस्क फॉर द पेपर्स। इधर बहुत ही विचित्र, ऐसे साधु कहीं नहीं है, पेपर मांग रहे जाके, और मांग करके उस पर लिखते थे ट्रांसलेशंस, परपर्ट्स,
और फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो पढ़ोगे तो बहुत डीप पर्पस प्रभात की उस समय के लिखे गए, जब रिसोर्सेज नहीं थे प्रभात के पास। फिर वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ते थे, थर्ड क्लास डब्बे में बैठते थे और वहाँ से आते थे पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पीछे जाते थे चिपीवाड़ा, वहाँ चिपीवाड़ा में प्रिंटिंग प्रेस के बहुत बड़े मार्केट है, मिलते थे पब्लिशर्स से, कुछ खाते भी थे नहीं, सुबह से भूखे पेट सब कुछ करके बर्बाद आते थे। और फिर सारा उसके बाद इसमें क्या क्या सोच, कितनी मेहनत है, कितनी ये भक्ति होती है। दिस इज भक्ति। भक्ति को उदाहरण देखना हो तो आचार्य के जीवन को देखें। और फिर प्रभुपाद क्या करते थे, आते थे तो सारा प्रिंटिंग का सब्सटेंस देते थे और फिर इसकी जब डाइस तैयार होती थी उससे पहले प्रूफ रीडिंग, और प्रूफ रीडिंग बहुत मतलब कठिन काम है, एक एक चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे कि वह वर्ड सही है कि नहीं, सही जगह कॉमा लगा है कि नहीं, सही जगह फुल स्टॉप लगा है कि नहीं, पैराग्राफ का ब्रेक सही आया है कि नहीं, इतने सिंटैक्स को। अब एक पोस्टर बनाते हैं इतना पढ़ना पड़ता है उसको, ये पोस्टर एक भक्त ने बना के भेजा, बताया कि भाई यहाँ ये चीज़, यहाँ ये चीज़, ध्यान से देखना पड़ता था, आराम से टाइम लगता है उसको करने में। तो इतनी भागवतम की पूरी प्रूफ रीडिंग करना, और फिर वो पब्लिशिंग जाएगी, फिर बाइंड हुई। अब बांटेगा कौन इसको, कोई टीम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, खुद करते थे। कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस है ना यहाँ पे कनॉट प्लेस पे, वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे लोगों को दे रहे हैं और लोग सिगरेट बीड़ी पी के मुँह पे धुआं उड़ा रहे हैं। अरे स्वामी जी सब क्या है, भारत आज़ाद हो चुका है, अब हमें अमेरिका बनना है। कहाँ ये सब फिर शुरू कर दिया, क्या कि ना अमेरिका बनना है हमें, अमेरिका बनना है, इंग्लैंड को फॉलो करना है हमें आगे बढ़ना है। कब तक मतलब हम लोग यही सब करते रहेंगे, मतलब हद हो गई। मतलब इतने समय से किए जा रहे हैं, लिमिट होती है इसकी। अभी भी यही आप लेके कर रहे हैं, कुछ आगे बताइए। ऐसा लोगों का एटीट्यूड था। और फिर क्या था, प्रभात ने ट्राई किया और फाइनली व्हेन यू ट्राई एंड सर्व कृष्णा ना, कृष्णा गिव्स द इंटेलिजेंस, भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान ने बुद्धि दी प्रभात को और बताया, याद करो गुरु ने क्या बोला था, वेस्ट में प्रीचिंग करो। और वेस्ट में जब प्रभुपाद ने शुरू किया तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग केम अप। भगवान ने इतना सपोर्ट दिया, सोचो आप, इतने सुंदर भागवतम के कवर्स हैं, पेजेस हैं, फर्स्ट क्लास भागवतम के। कभी देखो ना किसी को दोगे, लोग अंदर कंटेंट नहीं जानते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग किताब देख के ले लेते हैं। मेरे तो बड़ी सुंदर फोटो है इसमें, तो बड़े अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी बाइंडिंग है इसकी। मैंने बोला उससे ज़्यादा मज़ेदार उसका अंदर का माल है, अब इसको लीजिए पहले। ये तो जो बाहर का है वो सो है, उसके ज़्यादा सब्सटेंस अंदर के माल में है कि नहीं। तो पैकेजिंग भी है, सब्सटेंस भी है। तो ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सब को जितने बैठे हैं, अच्छी साधना करनी है, अच्छे साधक बनना है ना, तो कुछ ना कुछ प्रचार जरूर करना चाहिए आसपास। और जहाँ भी कर सकते हैं, अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना एरिया है, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग तैयारियाँ वगैरह कर रहे हैं, बट इट शुड बी द डेली पार्ट, कुछ ना कुछ रोज जरूर करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ प्रीचिंग करनी चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, प्रीचिंग की किसी एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए। सो मर्सिलेस जो हार्ट होता है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा सा सेंसिटिव बनता है भगवान के प्रति। एंड लास्ट थिंग जो इसमें पशुगणात को संबंध में बताया गया है कि ये कर्म कांडीय विचार रखना। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने परपट में भगवान बुद्ध का उदाहरण दिया है और बताया कि भगवान बुद्ध का प्राकट्य क्यों हुआ। लोग इसी बात को जानते नहीं है। भगवान बुद्ध का प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि भगवान बुद्ध वैदिक ग्रंथों में जो एक यज्ञों की विधि दी गई थी, यज्ञों की विधि दी गई थी ना, उसकी निंदा करने के लिए, उसको बंद करने के लिए आए थे। क्योंकि यज्ञों में क्या होता था कि जब भी यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ को टेस्टिफाई करना होता है कि यज्ञ सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए पशु की बलि देनी होती थी। अगर पशु की बलि में पशु को पुनर्जीवन मिल जाता था तो मतलब यज्ञ ठीक है, अन्यथा यज्ञ में त्रुटि रह गई है। तो लोग क्या करते थे, लोगों को जब कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता था तो उनको लगता था कि यज्ञ में, यज्ञ के बाद की एक रिचुअल है एक पशु की बलि देना। तो ऐसे रिचुअल वो क्या करते थे, यज्ञ में वो बलि देना शुरू कर दिया। तो लिटरली दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कलयुग। जो यज्ञ स्थलियां होती थी ना, वो एक प्रकार से कसाई खाना बन चुका था, जहाँ पे कि खाली पशुओं को मारा जा रहा था। हमें कसाई खाना देख के बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन पहले के समय यहाँ से कम आज 5,000 साल ना, तो कम से कम 4-4,500 साल, कितने साल पहले ये सब कर रहे थे लोग। यज्ञ कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, यज्ञ बलि। भगवान को बड़ी करुणा आती है कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों को मैसेज ही समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। यज्ञ का पूरा मैसेज ही नहीं क्लियर है लोगों को। और कलयुग में ये यज्ञ चल ही नहीं सकता है। कलयुग में जो यज्ञ है वो खाली संकीर्तन यज्ञ है। तो क्या किया भगवान ने, फिर प्राकट्य लिया बुद्ध के रूप में। इसीलिए लिखा है निंदसी यज्ञ विधे अहश्रुति जातम
सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो जगदीश प्रकट हुए किसके रूप में? बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। और निंदसी, निंदा, निंदा मतलब स्टॉपिंग, व्हाट टू स्टॉप, यज्ञ विधि, यज्ञ विधि को, जो कि श्रुतियों में लिखा गया है, इसकी प्रमाण श्रुति से आता है। क्यों? सदय हृदय दर्शित पशुघातम, भगवान के हृदय को भी दुख पहुंचता है ऐसे पशुओं की बलि देख करके, पशुओं को मारा जा रहा है, गलत है। इसीलिए जो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, इट्स टोटली अगेंस्ट द वैदिक फिलॉसफी, टोटली। अगर वैसे अगर ध्यान से समझेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर या वैदिक फिलॉसफी के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो एक्चुअली बुद्धिस्ट हैं। कई बार हम लोग, कई बार मुस्लिम्स को, इस्लाम को मानते हैं, दे आर इन इग्नोरेंस बट दे आर नॉट अगेंस्ट इट, डोंट नो इट। अगर उनको सही सी प्रीचिंग करें, इफ दे हैव दे आर फ्री ऑफ प्रेजुडिस एंड बायसनेस एंड इफ दे आर ओपन माइंड, दे एक्सेप्ट इट। इंडिया में नहीं होगा, इंडिया मुश्किल है, बट थोड़े लिबरल मुस्लिम्स हमने देखे हैं सऊदी अरेबिया वाई साइड और थोड़े दुबई, इस सब एरिया में ना थोड़े लिबरल माइंडसेट्स हैं, दे एक्सेप्ट इट। बट बुद्धिज्म, इफ योर हार्डकोर फॉलोअर, नेवर, इट्स अगेंस्ट वेदास, इट्स टोटली अगेंस्ट वेदास। ये पूरा वेदों के अगेंस्ट है, वेदों को नहीं मानते, दे डोंट फाइंड द वेदास को। और इसके लिए फिर सक्सेसिवली हम जानते हैं वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए कौन आए थे? आदि गुरु शंकराचार्य। तो उन्होंने वेदों, लेकिन वेदों को स्थापित कैसे किया? गलत तरीके से किया। मायावाद शास्त्रम प्रसन्नम बौद्ध मुच्यते, हाँ, मयेव विहितं देवी कलो ब्राह्मण मूर्ति ना, हाँ, ये शंकराचार्य के प्राकट्य का श्लोक है पद्म पुराण में। मायावाद अशास्त्रम, अशत शास्त्र, मायावाद का प्रचार किया ना, जो असत है, सही नहीं है, रॉन्ग फिलॉसफी। और क्यों किया था? प्रचन्नम बौद्ध मुच्यते, बौद्ध के धर्म को, बौद्ध के शिक्षाओं को ढकने के लिए किया था ताकि वो हट सके। इसीलिए वैसे हिस्ट्री में जाओगे तो देखोगे, बड़ा हम सुनते हैं अशोका द ग्रेट एस्टैब्लिश्ड, अशोका स्तंभ है हमारा। एक्चुअली आधी चीज है, इट्स सच इग्नोरेंस, है ना, अशोका स्तंभ, उसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन द ग्रेट अशोका, कलिंगा का वॉर, ये वो सबसे बड़ा आसुरिक राजा था और बुद्धिज्म को फैलाने में मदद की थी। और उसको अकेले सिंगल हैंडेडली किसने भगाया था? पूरे बुद्धिज्म को भारत से भगा दिया, दैट वाज आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे बुद्धिज्म को लात मार के भारत से बाहर कर दिया, कहीं भारत में उसका अंश नहीं है। इसीलिए भूटान, कंबोडिया, लाओस, इधर ऊपर तिब्बत, ऐसे कुछ हो जाएगा। इंडिया में कहीं है तो थोड़ा जाओगे ऊपर, धर्मशाला में, अकलौटीगंज में मिलेगा, गया में है क्योंकि दैट वाज द बोध स्थली भगवान बुद्ध की। सारनाथ हो गया, दैट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर ही गिव हिज सरमन, लेक्चर दिया, एंड फ्यू टिट्स एंड बिट्स। तो दैट वाज आदि गुरु शंकराचार्य। अब इसके बाद सक्सेसिव वैष्णवाचार्य जाते हैं। श्री वैष्णव में रामानुजाचार्य, देन वी हैव Vishnu Swami was before it, then Vishnu Swami is Ramanujacharya, then Nimbarkacharya, and then finally Madhvacharya, और मध्वाचार्य के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु। So this is very successive way the things went, बहुत successive। कहने करते हैं यहाँ पे कर्म कांडीय की बात कर रहे थे, तो कर्म कांडीय मानसिकता से जब कोई कार्य करते हैं ना, तो उस मानसिकता से भी कृष्ण कथा में रुचि नहीं आती। अब लास्ट चीज और खत्म करेंगे, तो कर्म कांडीय विचार से भक्ति भी होती है। कर्म कांडीय विचार है, ध्यान सुनिएगा, ये कर्म कांड नहीं बोलिएगा, भक्ति कर रहे हैं। कभी कोई भक्त ऐसा कर रहा है तो भक्ति कर रहा है, बट वो कर्म कांड नहीं कर रहा है। कई बार लोग बड़ा कर्म कांड कर रहे हैं, हाँ, मंदिर में आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं भगवान की, या माला पहन दे रहे हैं भगवान को, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं आके, देखा कि मंदिरों में ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि पैसे से डाल रहे हैं, है ना, बड़ा विचित्र विचित्र चीजें होती करते हैं लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि उसे कर्म कांड नहीं बोलना चाहिए, कर्म कांड है नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति है। कर्म कांड देवताओं के लिए होती है, बट कर्म कांडीय विचार है या मानसिकता है व्यक्ति के अंदर, और वो एक्सपेक्ट सेम चीज करता है जैसे वो देवताओं के साथ करता है। देवताओं के साथ जो उसकी आदान प्रदान या डीलिंग है ना, वैसे ही वो कृष्णा के साथ चाहता है। लेकिन कृष्ण डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कृष्णा एक इंडिपेंडेंट है, कृष्णा इज नॉट बाउंड टू फुलफिल योर डिजायर्स, ही मे। इसलिए हम जब सुबह मंगल आरती में सुनते हैं ना, अनाउंसमेंट्स होती हैं कि राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ सुभद्रा गौर निताई, यदि आप चाहें तो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को भूलना नहीं चाहिए कभी। यदि आप चाहें तो उनकी इच्छा पे
आपको क्या प्रभु जी क्यों नहीं भगवान चाहते हैं, हम तो उनके भक्त हैं, चला माला कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, इतना हम नियम पालन कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हरि का नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं चाहते हैं भगवान? तो इसी को कहते हैं अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। थोड़ा भागवतम पलटी है, भगवान क्यों नहीं चाहते ऐसा? Why does Krishna don't want to give you the poison? भगवान जहर नहीं देना चाहते आपको, भगवान ऐसी कोई भी चीज नहीं देंगे आपको जो आपको भगवान से दूर ले जाए। और लोग संसार में वही चीज मांगते हैं जो भगवान से दूर ले जाए। भगवान से लोग यही ना मांगते हैं, भगवान वो दे दो जिससे आपके पास ना आना पड़े, दे के छुट्टी करो, क्योंकि नहीं दे रहे हो तो बार बार आना पड़ता है। एक बार दे दोगे तो छुट्टी एक बार में हो जाएगी, फिर आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान देंगे? नहीं देंगे। भगवान जीवन में ऐसा बना के रखेंगे हमें कि आपको आके मत्था टेकना ही पड़ेगा कभी ना कभी। बोलोगे तो जोर जबरदस्ती है, बहुत जोर जबरदस्ती की जा रही है हमारे साथ। ऐसा कोई प्रेम होता है? अब क्या कह रहा है, कई बार जब प्रेमी प्रेमिका, जब प्रेमी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा तो कुछ भी करेगा। तो इसलिए भगवान भी कई बार भक्ति में बहुत अच्छा माला कर रहे हैं ना, बहुत वैष्णव को प्रसन्न किए हैं और बहुत सेवा की है, तब तो आपका जीवन अब हो गया खत्म। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कोशिश भी करोगे भौतिक भोग वासनाओं की ना, ट्राई भी मारोगे, अटेंड नहीं मारोगे, नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है कई बार बहुत अच्छी सेवा किए होते हैं ना, बहुत सही में वैष्णव को जेन्युइन प्रसन्न किया होता है, भगवान के लिए किया होता है, जेन्युइन डिजायर के साथ भगवान को प्लीज किया होता है। अगर वो सब कुछ इस इंटेंशन से किया होता है कि बस भौतिक विलास करूंगा जाके बाहर में, असंभव हो। भगवान इतने सूक्ष्म सूक्ष्म लेवल पे काम करते हैं ना, जैसे कि आपका पूरा का पूरा भौतिक अस्तित्व खत्म कर देंगे। जिस चीज को आप सोचोगे इससे एंजॉय कर लूंगा ना मैं, उसी से इतना डिस्ट्रेस मिलेगा आपको। आप बोलोगे भगवान यार क्या कर रहे हो, मतलब हमने पूरी भक्ति में यही तो मांगा था आपसे, बस और कुछ तो मांगा नहीं, छोटी सी चीज मांगी थी, ऐसा हाल कर दिया हमारा आपने, बताइए। कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब यार पूरी तरह सड़क पे ले आया। बिल्कुल गलती की हमने विष्णु भक्ति करके, इससे तो अच्छे हमारे ये भगवान थे वो भगवान थे, लेकिन अब लेट हो चुका है। समस्या ये है एक्चुअली ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। कहते थे ना अंडरवर्ल्ड के भाई लोग कहते हैं ना, यहाँ पे 2 ही रास्ते हैं, एक बार जो आ गया इसमें आगे ही बढ़ना है उसको, अंडरवर्ल्ड में भाई लोग के साथ आगे बढ़ना है, और दूसरा है क्या, या तो सीधे ऊपर ही जाओगे। तो यही भक्ति के साथ भी, इसमें एक बार आ गए तो इसमें पीछे तो देखो ही मत देखो, जो छूट गया तो छूट गया। कई लोग भक्ति में फ्रस्ट्रेट होते हैं, पुराने दिन याद करते हैं, क्या दिन थे प्रभु जी। हम भी होते थे कुछ पहले, पता है, अरे ऐसे वैसे नहीं थे, हम भी कुछ थे, मतलब जब निकलते थे हम ना तो लोग देखते रहते थे बस, ये हमारा लेवल था उस समय का। अब की बात क्या है, क्या बताएं आपको, तो क्या मतलब पता नहीं क्या कर दिया इस कौन वालों ने, मतलब ना, मतलब क्या क्या सुना सुना के, खिला पिला के, कहाँ कहाँ घुमा के, गाँव 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 में घुमा घुमा के बताया ये है ये है ये है, मतलब पूरा एकदम ब्रेन वॉश कर दिया हमारा, एकदम पूरा खत्म कर रखा है। तो क्या करें, चलिए ठीक है कर लेते हैं भक्ति, क्या है, कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। तो फिर मतलब इसमें हाफ हार्टेड एटीट्यूड से भक्ति में मजा नहीं आता है, तो फिर पूरी तरह से लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज थी, बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम यहीं रोकेंगे इसको।